Okay, Ji, this is the clinical scenario written here. I hope you have written something out of this scenario. Then write something down, please. Write a diagnosis or abnormality of which gland you are predicting. Write it down, please. There are features of polydipsia, polyuria, and nocturia during the previous 3 months. Diabetes mellitus was excluded. Water deprivation test was positive. या जिन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे one by one. Pituitary MRI was normal with normal signal of the high intensity in neurohypophysis. He had no other hormonal deficits. Autoimmune and infectious diseases were excluded. After initiation of oral desmopressin, the symptoms disappeared. Posterior pituitary, we are discussing if we are discussing such scenario. तो दो किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, पिट्यूटरी स्टॉक होती है, इसको न्यूरोफाइजेंस कहते हैं. The hormones of posterior pituitary are made in hypothalamus in the presynaptic terminal, just like neurotransmitters, and then they are released in the synapse, and then they reach the posterior pituitary gland and they are stored there, and they are stored and released accordingly. This is the same their storage and release mechanism. So these are two, ADH vasopressin, other name vasopressin, oxytocin. Can you spot out the difference in amino acid between the two hormones here? Third one, any other? And the second last as well. Structurally quite similar to each other, very similar. ये सिर्फ दो amino acid का difference है, but just look at the difference in functions of the two. Both are polypeptide in nature, both are formed by hypothalamus, both are stored in posterior pituitary, both are almost similar in structure, लेकिन just telling you the importance of one or two amino acids. It will change the whole function, the whole formation of the resultant hormone. Almost identical. So ADH का आपको पता ही है, इसके दो रिसेप्टर होते हैं, V1 and V2. By the way, हमने कुछ हेडिंग्स करनी थी. What is the nature of ADH? Polypeptide. Mechanism of action, G protein coupled. Enzyme linked वाले आपको पता है, वो हम साइड पे करें, G protein coupled. उसके बाद इसके मेटाबॉलिक एक्शंस हैं कोई? Protein, lipid, carbohydrate. ADH has no metabolic role to play. इसका नॉन मेटाबॉलिक फंक्शन है, और ये जो सामने आपकी स्लाइड पे लिखे हुए हैं ये नॉन मेटाबॉलिक, और नॉन मेटाबॉलिक दो फंक्शंस हैं, इसके दो रिसेप्टर हैं, इसको वेसोप्रेसिन कहते हैं. तो V से V1 एंड V2, A1 A2 नहीं है, ये V1 और V2 है. V1 आर लोकेटेड इन द ब्लड वेसल्स एंड V2 आर लोकेटेड इन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन. V1 का फंक्शन क्या है ब्लड वेसल्स के ऊपर? वेसोप्रेसिन का नाम क्यों देते हैं? इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल्स. और V2 क्या करता है? ADH का तो आपको पता ही होगा, it retains the water from the urine. Can you name some condition in which ADH secretion will be increased in regulation? Increased. कुछ नॉर्मल कंडीशन की बात करो ना जो लाइफ में हम फेस करते हैं जिसमें ADH ज्यादा आ जाता है. डिजीज नहीं पूछी मैंने. Dehydration. What can be the causes of dehydration? Go one step further. सिंपल पे आओ, डिजीज से सिंपल पे आओ. स्वेटिंग. इट्स अ वेरी कॉमन नाउ डेज. स्वेटिंग बहुत हो रही होती है तो हमारे ADH हमेशा ज्यादा ही रहने वाला है. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. USMLE की एक बुक में लिखा हुआ है कि इफ देयर इज नो ADH इन द ब्लड, उसके फंक्शन की इंपॉर्टेंस लिखी हुई है कि अगर वो नेफ्रॉन में आके अपना काम ना करे, हमारा पर डे यूरिन प्रोडक्शन कितनी है? 1 to 1.5 लीटर पर डे. द यूरिन प्रोडक्शन विल गो अप टू 30 लीटर पर डे in the absence of ADH. तो ये ADH की इंपॉर्टेंस सिर्फ यही नहीं है कि डिहाइड्रेशन होगी, स्वेटिंग होगी, डायरिया होगा तभी प्रोड्यूस होगा. ये 24 आवर हमारी बॉडी में इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये हर वक्त ये काम कर रहा है. तो एक्चुअली ना जो मैं इसके साथ टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं ना, ADH सिर्फ वाटर रिटेन ही नहीं कर रहा है, ये वाटर को बहुत इंपॉर्टेंट, उसका ये कॉस्मो रेगुलेटर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहता है ना कि वो एक उस पर नजर रख रहा है कि वाटर लेवल बॉडी का क्या चल रहा है. और आपको पता है 24 घंटे कांस्टेंट नहीं होते हो आप. कभी कभी ऐसे भी होता है आपको प्यास लग रही है, अभी पानी अवेलेबल नहीं है, यू वेट फॉर सम टाइम, बट ऑफ कोर्स द बॉडी होम्योस्टेसिस कैन नॉट वेट दैट लॉन्ग. तो ऑटोमेटिकली ADH आपकी बॉडी में आएगा, वो काम करेगा और अपना. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्शन इन ऑल दिस?
ऑफ कोर्स दिस डिहाइड्रेशन, डायरिया, स्वेटिंग विल लीड टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर, तो ये वहां से भी एलिवेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो तरीके से काम करने की कोशिश करता है। एडीएच का एक सिंथेटिक नाम भी है डेस्मोप्रेसिन, जो सिनेरियो में यूज हुआ है, जिसकी हमने सिनेरियो में बात की अभी अभी। अगर अब मैं इसको सम अप करूं यूएचएस के एमसीक्यूज के लिए एडीएच को, तो इफ देयर इज हाइपोऑस्मोलैरिटी इन ब्लड, गौर से मेरी बात सुननी, यू विल आंसर दैट। इफ देयर इज हाइपोऑस्मोलैरिटी ब्लड, एज अ रिजल्ट एडीएच विल इंक्रीज और डिक्रीज। Hypoosmolarity means water is more in blood or less? Never forget this, please, whenever you have to answer such questions. Osmolarity in human body means the solute concentration. If I am talking about isoosmolar, the solute and solvent are in equal concentration. तो हाइपो में कम क्या हो रहा है? सोल्यूट। हाइपर में ज्यादा कौन हो रहा है? सोल्यूट। एंड वाइस वर्सा फॉर दी वाटर। If I am talking about hyperosmolar, solute is more, water is less. If I am talking about hypoosmolar, solute is less, water is more. Now ADH is not needed. When there is hypoosmolarity, already hypoosmolarity, ADH is not needed. So what is the trigger of release of ADH? Hyperosmolarity. Hyperosmolarity. ये टर्म सिर्फ इतनी सी नहीं है कि आप इसको इतना सिंपल ले लो, ये वहां पे बैठ के आपको दोबारा से याद ना करनी पड़े, इसलिए मैंने यहां पे ये लाइन लिखी है इससे रिलेटेड, ताकि आपको याद रहे कि वो कब रिलीज होगा। ओके। और हाइपर ऑस्मोलैरिटी की कॉजेज वही हैं जो अभी हमने डिस्कस की, जो एडीएच रिलीज करवाती। स्वेटिंग, डिहाइड्रेशन, डायरिया, व्हाटएवर द प्रॉब्लम वेयर देयर इज वाटर लॉस, इट विल लीड टू हाइपर ऑस्मोलर कंडीशन। ओके, कमिंग टू द प्रॉब्लम विद एडीएच। एडीएच में जो इश्यूज आते हैं, the diseases of ADH, the last part after regulation is the problem with decrease ADH। दो किस्म की होगी ना, इंक्रीज और डिक्रीज। डिक्रीज की बात कर लेते हैं। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। The decreased ADH level in blood is called diabetes insipidus. What can be the features? The scenario we have just discussed here. There is polyuria, increased water in urine. Polydipsia is increased thirst. ये रिफ्लेक्सिव है, जब पानी ज्यादा निकलेगा तो प्यास ज्यादा लगेगी, वो इसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये दो फीचर है। Aren't these two feature related to diabetes mellitus as well? आपने वो scenario में दोबारा दिखाऊं? Diabetes mellitus was excluded। एक पेशेंट डॉक्टर के पास अगर आके कहता है कि यूरिन बहुत आ रहा है कुछ दिनों से और प्यास बहुत लग रही है, डायबिटीज मेलाइटिस इज ऑलवेज द नंबर वन डायग्नोसिस कम्स टू अ डॉक्टर्स माइंड। इट इज मोर कॉमन, दैट्स व्हाई। और वो एक्सक्लूड कैसे किया गया होगा? कुछ है कुछ देना? ब्लड ग्लूकोज लेवल माइट बी, वो करवा लिए गए होंगे। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आपको शायद ब्लड ग्लूकोज लेवल शायद ना दिया उन्होंने, they may not give in clinical scenario in MCQ or SCQ, but how will you differentiate? और ये भी ना लिखा हुआ कि डायबिटीज मेलाइटिस, मैंने आपके लिए आसान कर दिया ना, मैं लेके जाना चाह रहा था आपको जो मैं पूछ रहा था, लेकिन वहां पे ये भी नहीं लिखा कि डायबिटीज मेलाइटिस इज एक्सक्लूडेड। देयर इज आल्सो अनदर फीचर ऑन द हिस्ट्री which can also lead you towards diabetes mellitus or diabetes insipidus. Polyphagia, increased hunger, that is associated with diabetes mellitus. It has nothing to do with diabetes insipidus. ये आपको पता है ना? देखो मेरी बात सुनो, इधर मेरी तरफ देखो बेटे, लिख लोगा, मेरी बात सुन लो, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। डायबिटीज मेलाइटिस में प्रॉब्लम क्या है? ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा रही, ब्लड में रह रही है। तो सेल को जब ग्लूकोज नहीं मिल रही तो सेल को तो एनर्जी मिल ही नहीं रही। तो सिमिलर वो जो हाइपोथैलेमस में एपेटाइट सेंटर, हंगर सेंटर, वो वाली गेम ऑन हो गई है।
जिसमें आपका एपेटाइट सेंटर एकदम ऑन हो गया और वो आपको लगातार कह रहा है कि सेल को नहीं मिल रहा भाई कुछ, तो उससे और ज्यादा क्या हो रही है, भूख लग रही है। कितना विशियस साइकिल है डायबिटीज मेलाइटिस के बंदे में कि उसके सेल को कुछ मिल नहीं रहा, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होती जा रही है, इट इज लीडिंग टू पोलीयूरिया एंड पोलीडिप्सिया, और वो और खा रहा है क्योंकि उसके ब्लड को ग्लूकोज नहीं मिल रही, उसको भूख लग रही है। और ये ऐसा साइकिल है कि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा ही होता चला जा रहा है। ये डायबिटीज इंसिपिडिस में ये रोल नहीं है, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडिस में ग्लूकोज का तो इश्यू ही नहीं है। तो इसीलिए पोलीफेजिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लेंट टू बी डिफरेंट। अच्छा, पोलीफेजिया एक जाहिर है इसका डायग्नोसिस बनाना पड़ता है, इतना सिंपल नहीं है। अगर आप एक किसी भी ऐसे बंदे से पूछें जिसको यूरिन बहुत आ रहा है और प्यास बहुत लग रही है, एंड इफ यू आस्क हिम कि आपको भूख भी बहुत लगती है, इट्स अ वेरी वेग काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। वो लाइक कुछ बंदे कहेंगे हाँ जी भूख लगती है, वो आपको उसको प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना पड़ता है कि कितनी ज्यादा भूख लगती है, आपके डाइटरी पैटर्न कितने चेंज हुए हैं। देन वो कहेगा कि यस अब मुझे बहुत ज्यादा खाना पड़ रहा है, पहले सिर्फ ब्रेकफास्ट लंच और डिनर था, लेकिन अब उसके दरमियान में भी खाना खाना पड़ता है, बहुत ज्यादा हंगर पैंग्स फील शुरू हो गई। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में चला जाता है। डायबिटीज इंसिपिडिस में देयर इज नो पोलीफेजिया। ये मैं आपको एक क्लू बता रहा हूं कि जस्ट टू डायग्नोज इन योर एमसीक्यूज एंड एचसीक्यू पेपर, ताकि इस बेस पे आप डिफरेंशिएट कर लो, चाहे डायबिटीज मेलाइटिस लिखा है नहीं लिखा, कुछ और बात की है कि नहीं की। Diabetes insipidus is of two type. One is central diabetes insipidus and second is nephrogenic diabetes insipidus. ये मैं एब्रीविएशन खुद से बना रहा हूं, आपने इसको जब भी लिखना है कंप्लीट लिखना है। कोई फर्क इसके नाम से पता लग रहा है? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस एंड नेफ्रोजेनिक। एक मिनट, अगर एक पेशेंट आया पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया के साथ, मैंने उसके एडीएच ब्लड लेवल्स मेजर कर लिए, दोनों केस में किस में नॉर्मल निकलेंगे? In nephrogenic diabetes insipidus, there is a problem with the receptor V2 of the ADH. In central diabetes insipidus रिलीज ही नहीं हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस दोनों में कहीं इश्यू है, ब्लड में नहीं आ रहा है। इसमें एडीएच लेवल बहुत लो है, इसमें एडीएच लेवल नॉर्मल या शायद हाई है। आपको ये स्टोरी बिल्कुल टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस जैसी नहीं लग रही? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में देयर इज नो इंसुलिन, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में देयर इज ऑलवेज इंसुलिन, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडिस में देयर इज नो एडीएच। इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस एडीएच इज नॉर्मल और माइट बी मोर बाय नेगेटिव फीडबैक, बट द रिसेप्टर्स आर नॉट रिएक्टिव। सिमिलर टाइप 2 में तो ये होता है ना कि इंसुलिन है तो सही ब्लड में, रिसेप्टर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। दोनों में से कौन सा पेशेंट डेस्मोप्रेसिव के इंजेक्शन से बेहतर होगा? सेंट्रल डायबिटीज। इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है, ये ऐसे बंदों में सेंट्रल और ये सेंट्रल नेफ्रोजेनिक की डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है। एक बंदे को वाटर से डेफिशिएंट रखा जाता है, उसको पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया हो रहा होता है, ऑफ कोर्स वाटर लॉस हो रहा होता है, उसको डेस्मोप्रेसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, और उससे फौरन अगर पेशेंट इंप्रूव करना शुरू हो जाए, उसकी हालत बेहतर होनी शुरू हो जाए, पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया विल लीड टू व्हाट? आगे क्या है? इट विल लीड टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर। और मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब एडीएच नहीं है तो कितना यूरिन बन सकता है? 30 लीटर। यार हमारे पास टोटल 3.1 लीटर प्लाज्मा है एक इन एवरेज ह्यूमन बीइंग। वी कांट अफोर्ड दिस 30 लीटर लॉस। 5 लीटर का होता है ना खून, 55% प्लाज्मा है, और प्लाज्मा से यूरिन बनना है। वी कांट अफोर्ड दिस। 1 से 2 दिन 3 दिन में ये बंदा बिल्कुल एडमिट हो जाएगा आके। कैन वी गिव हिम आईवी ड्रिप? कैन ही इंप्रूव? हार्डली। उसको शायद जिंदा रखने के लिए ड्रिप्स बहुत है, वो ठीक है, लेकिन असल प्रॉब्लम तो हम हल ही नहीं कर रहे हैं। उसको डेस्मोप्रेसिन जब तक, जस्ट लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ एडीएच, एक चलते फिरते बंदे को बेड पे लेटा देता, इतना इंपॉर्टेंट है। नेफ्रोजेनिक की ट्रीटमेंट की कोई ऑप्शंस? नेफ्रोजेनिक इज अ वेरी डेंजरस डायबिटीज इंसिपिडिस, वेरी डेंजरस, बिकॉज इसमें हमारे पास डेस्मोप्रेसिन देने का भी ऑप्शन नहीं बचा जो हमारे पास वहां पे था। इसमें भी दिया जाता है, रिलेटिवली पेशेंट इंप्रूव करता है बट नॉट सो मच। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइप 2 में इंसुलिन लगाते हैं, हालांकि टाइप 2 में इंसुलिन डेफिशिएंट तो नहीं है, बट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सो मच कि कुछ ना कुछ तो जाके लगे जाएंगे और पेशेंट में आता है रिस्पॉन्स। आपको पता है टाइप 2 हमारे घर में जिनको है
वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं एंड दे आर सर्वाइविंग ऑन दैट। तो वो टाइप 2 में जो रीजन है ना, सेम इट कैन बी अप्लाइड हियर, लेकिन देखा गया है कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में इट्स वेरी रेयरली सीन के पेशेंट इंप्रूव करता है, वेरी डेंजरस। तो ये दोनों इसके साथ है। सो ये कौन सा वाला था? यस, इट वाज सेंट्रल, कि जैसे ही उसको डेस्मोप्रेसिन दिया उसके सिम्टम डिसअपीयर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर दो जगहों पे मेजर होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर होते हैं और यूट्रस के अंदर होते हैं। ऑक्सीटोसिन का एक और दो नाम है इसके और जो यूज होते हैं। यस, इट इज अ लव हार्मोन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी प्रेगनेंसी हार्मोन। एंटी प्रेगनेंसी हार्मोन। इफ द, अब गौर से सुनो बात, इफ द लेवल्स ऑफ ऑक्सीटोसिन rise in the blood of a pregnant lady before 9 months, it's a very bad news, it will lead to abortion. If the levels of oxytocin rise in a pregnant lady before 9 months, जो उसका normal time period है, it will lead to abortion। उसकी बड़ी common cause क्या है कि of course जब ये raise होंगे तो uterine contraction शुरू कर देंगे, which are not needed before 9 months, and if it happens, of course there will be a premature delivery। 7 month में भी premature delivery हो जाती है, baby survive कर जाता है, लेकिन very dangerous, ये normal नहीं है। So oxytocin is an anti-pregnancy hormone, must not be raised during the pregnancy। Yes, at the end of pregnancy it should rise, and then of course ये दोनों काम करता है। ये milk ejection, milk formation is a function of prolactin। अच्छा, ये तीन है हार्मोन। breast development is a function of estrogen, milk formation is a function of prolactin, and milk ejection is a function of oxytocin। There are three hormones which are involved in this process। ईस्ट्रोजन का ब्रेस्ट डेवलपमेंट का बिल्कुल ये वही वाला स्टेटमेंट है जैसे डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल्स, सेम इज द ईस्ट्रोजन, वो ये काम ईस्ट्रोजन करवाता है जो मेल में टेस्टोस्टेरोन करवा रहा है, ये उसके साथ आ जाएगा। मिल्क फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन के साथ आ जाएगी, एंड देन ऑफ कोर्स दिस फंक्शन इज एसोसिएटेड विद ऑक्सीटोसिन।